अहोऽलं श्लाघ्यात्तमं यदोकुलम् अहोऽलं पुण्यतमं मधोर्वनं तदेष पुंसां वृषभाश्रयापतिः स्वजन्मना चक्रमणेन चाञ्चति. Translation and purport by Srila Prabhupada. Oh, how supremely glorified is the dynasty of King Yadu, and how virtuous is the land of Mathura, where the supreme leader of all living beings, the husband of the goddess of fortune, has taken his birth and wandered in his childhood. तो यदुवंश का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, और ये मथुरा भूमि जो है कितनी पावन भूमि है, जहाँ पर भगवान कृष्ण जो सारे जीवों के शुभ चिंतक है, लीडर है, जो लक्ष्मी जी के पति, उन्होंने यहाँ जन्म लिया है और सारे बाल लीला किए हैं उन्होंने यहाँ. लक्ष्मीपति को क्या बोलते हैं? माधव प्रभु जी. यस, लक्ष्मीपति मीन्स माधव. माधव मीन्स लक्ष्मीपति. तो कौन, अंजलि जी पढ़ेंगे? कौन पढ़ेगा? हिंदी प्रभु. पढ़िए. In the Bhagavad Gita, the personality of Godhead, Sri Krishna, has expressively given a description of his transcendental appearance, disappearance, and activities. The Lord appears in a particular family or place by his inconceivable potency. He does not take his birth as a conditioned soul, quits his body, and accepts another body. His birth is like the appearance and disappearance of the sun. The sun arises on the eastern horizon, but that does not mean the eastern horizon is a part of the sun. The sun is existence in every part of the solar system, but he becomes visible at a scheduled time and also become invisible at another scheduled time. Similarly, the Lord appears in the universe like the sun and again leaves our sight at another time. He exists at all times and at every place. But his causeless mercy, when he appears before us, we take it for granted that he has taken his birth. Anyone who can understand this truth in terms of the statement of revealed scriptures certainly becomes liberated just after quitting the present body. Liberation is obtainable after many births, and after great endeavor in patience and perseverance, in knowledge and renunciation. But simply by knowing in truth about the Lord's transcendental birth and activities, one can get liberation at once. This is the verdict of Bhagavad Gita. Hare Krishna. Hare Krishna. So in the Bhagavad Gita, Lord Shri Krishna is expressively given a description of his transcendental appearance, disappearance and activities. ये जो श्लोक है हमको मैं बताऊं? सुनीता जी बताएंगे. मुझे कह रहे हो प्रभु जी? यस. अरे प्रभु जी, मैं कहाँ बताऊंगी, मुझे तो एक ही आता है, यदा यदा धर्मस्य. वो तो धर्म के लिए होते हैं. इसमें ये तो है कि वो अपना विराट स्वरूप दिखाते हो, कहते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं बीज. नहीं नहीं, ये प्रभु जी मैं बताऊं? आइए शमी जी. प्रभु जी ये बोला है, जन्म कर्म च मेव दिव्यमेव. पूरा 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 श्लोक को बोलिए. अच्छा. जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं य वेति तत्वः त्यवक्ता देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुना. भगवान कहते हैं कि one who knows the transcendental nature of my appearance and activities does not, upon leaving the body, take his birth again in this material world, but attains my eternal abode, O Arjuna. मेरे जो जन्म कर्म को तत्वता में जान लेता है, वो अगले जन्म में एक कफपित वायु वाला शरीर नहीं लेता है. वो सत्चित आनंद वाला
शरीर लेता है, उसको ऐसा कृपा मिल जाता है। तो वही भगवान बता रहे हैं, भगवान किसी पर्टिकुलर फैमिली में आए, किसी प्लेस में आए, अपनी योग माया की शक्ति किसी बद्ध जीव की तरह जन्म नहीं लेते। उनका जो जन्म है एक सूर्य के समान है। जैसे सूर्य जो है ईस्टर्न होराइजन पे आता है, और इसका ये मतलब नहीं है कि ईस्टर्न होराइजन भगवान सूर्य का पिता बन गया, माता पिता बन गया। जो सन जो है हरे कृष्णा। वो सब जगह पे विद्यमान है। एवरी पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम सन इज देयर, बट ही बिकम विजिबल एट ए शेड्यूल्ड टाइम। प्रभु जी, पर ये श्लोक कौन सा 5th चैप्टर का है ना ये? नहीं, 4 का 9th है। 4 का 9। 4.9 प्रभु जी 4.9 है। यस। सिमिलरली द लॉर्ड ऑल्सो, जैसे सन अपीयर होता है वैसे ही भगवान, जैसे सन अभी भी कहीं पर बुझा भी हुआ है, अभी हमारे तो उगा हुआ है, कहीं पर वो डिसअपियर, कहीं पर रात हो रही है, कहीं पर दिन हो रहा है। इसका ये मतलब नहीं है जहाँ रात हो रही है वहां सूर्य खत्म हो गया, सूर्य है बट वो अनमैनिफेस्टेड है। उसी तरह कृष्ण भगवान जो है वो हमेशा विद्यमान है, वो मैनिफेस्ट अनमैनिफेस्ट होते रहते हैं। इसलिए he is like exists at all time at every place, but by his causeless mercy when he appears before us we take for granted that he has taken his birth। भगवान का जन्म हो गया, भगवान तो कभी मरते ही नहीं है, ना कभी जन्म लेते हैं, वो तो हमेशा विद्यमान है। तो ऐसा ट्रुथ, ऐसे तत्वता को, ऐसे अंडरस्टैंडिंग को जो जान लेता है वो मुक्त हो जाता है इस शरीर। मैं कहाँ तक पढ़ा था? भगवत गीता तक प्रभु जी आ गया। तो लिबरेशन जो मुक्ति जो है वो कई कई जन्मों के बाद मिलती है, कई कई जन्मों के बाद ये मुक्ति मिलती है। उसके साथ भी आपको धैर्यता लगती है, प्रिजर्वेंस रखती है, नॉलेज, रेनुंसिएशन, ये सारे काम करने हैं। ज्ञान भी होना है, विरक्ति भी होनी है, धैर्यता भी रखनी है, चेष्टा भी करनी है, तब जा। Preservance means चेष्टा प्रभु जी। हाँ, Preservance means चेष्टा। Christians and perseverance they are using as the same thing actually, धैर्यता। धैर्य और preservance है ना? हाँ, और सिंपली ये ट्रुथ को जान लेना, सिंपली बाय नोइंग द लॉर्ड्स ट्रुथ, भगवान का जन्म कर्म को जान लेता तो मुक्ति उससे मिल जाती। यही भगवत गीता में बोल रहे हैं, यही भगवत गीता में भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। यस, रीड करिए। But those who are in the darkness of ignorance conclude that the Lord birth and activities in the material world are similar to those of the ordinary living being. Such imperfect conclusion cannot give anyone's liberation. His birth, therefore, in the family of King Yadu as the son of King Vasudev, and his transfer into the family of Nand Maharaj in the land of Mathura are all transcendental arrangements made by the internal potency of the Lord. The fortunes of the Yadu dynasty and that of the inhabitants of the land of Mathura cannot be materially estimated. If simply by knowing the transcendental nature of the birth and activities of the Lord, one can get liberation easily, we can just imagine what is in store for those who actually enjoy the company of the Lord in person, as a family member or as a neighbor. All those who were fortunate enough to associate with the Lord, the husband of the goddess of fortune, certainly obtain something more than what is known as liberation. Therefore, rightly, the dynasty and the land are both ever glorious by the grace of the Lord. Hare Krishna. कृष्णा, पूरा हम पूरा पढ़ लिया ना? So in this way, this is the message of Lord Krishna. Those who are in the darkness of Maya, वो भगवान के सारे कर्म एक्टिविटीज को ना, अगर वो साधारण व्यक्ति की तरह समझ लेते हैं, जो डार्कनेस में, तमोगुण में, तो समझते हैं कि भगवान भी हमारे जैसे ही, he is also like us only. So they are offenders of Krishna. They are committing a blunder
mistakes against the Lord Krishna. Such imperfect conclusions cannot give anyone liberation. किसी को मुक्ति नहीं मिलेगी ऐसा बोलकर। तो भगवान का जन्म, भगवान के सारे कर्म, भगवान जो यदुवंश में आए हैं और उनका नंद महाराज की फैमिली में जो ट्रांसफर हो रहे हैं, सारा कुछ स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे हो रहा है। It's happening all in the spiritual platform. They are all transcendental arrangements by the Yoga Maya potency. सारा कुछ योग माया से हो रहा है। वो सारे जो सिपाही थे, क्योंकि उनको तो कारागार में बंदी बना दिया था, कारागार से कैसे निकल गए वो वसुदेव जी? योग माया की हेल्प से प्रभु जी। योग माया की सब हेल्प कुछ सुला दिया। से। आप सारे सो जाते हैं हम्म। तो नींद आ जाती है, और योग माया की हेल्प से वसुदेव जी निकल जाते हैं और ट्रांसफर कर देते हैं। भगवान को गोकुल ले जाते हैं और वापस किसको लेके आते हैं? उसको नंद बाबा की बेटी होती है। बेटी कौन होती है वो? वो नाम माया है ही होती है प्रभु जी। योग माया। ये वो वही तो विंध्याचल देवी हैं। यस, नहीं, विंध्याचल देवी। दैट इज द योग माया, विंध्यवासिनी विंध्यवासिनी। लाइक दिस योग माया ओनली। या तभी तो कंस जो है वो 8वें पुत्र को भी लेके उठा के पटकते हैं उसको, जी और जब पटकते हैं तो दुर्गा देवी आ जाती है और वो बोलती है कि तेरे को मारने वाला जो आदमी है ऑलरेडी वो जन्म ले चुका है कहीं पर। पैदा हो चुका है, गोकुल में पैदा हो चुका है। गोकुल नहीं बताती है, मुझे पैदा हो चुका है। तो उसको वो डर लग जाता है, क्या हो गया ये? मैंने तो पूरे सारे षड्यंत्र रचे थे, सारे पूरा प्लान किया हुआ था उसको मारने का, वो तो जन्म ले लिया। क्या करते हैं, जो राक्षसनी पूतना होती है उसको भेजते हैं कि सारे ब्रज में जाओ और जितने भी नए बच्चे पैदा हुए हैं उनको सबको मार के आ जाओ। कहीं ना कहीं तो जन्म लिया है इसने, जो नया बच्चा पैदा हुआ है उसको सबको मार के आओ, जहर जहर चटवा दो सबको। तो ये ऐसा कार्य किया था हम लोग। तो this is the fortunes of the Yadu dynasty of the inhabitants of the land of Mathura cannot be materially estimated. Simply by knowing the transcendental nature of birth activities, one can get liberation easily. You can just imagine what is in the store for those who actually enjoy the company of the Lord. Simply अगर जन्म कर्म को समझने से मुक्ति मिलती है, उनका सोचिए जो भगवान की हमेशा कंपनी में रहते हैं, भगवान के संग में रहते हैं, भगवान के अंतरंगा भक्त हैं, भगवान के पार्षद हैं, भगवान के सानिध्य में जो रहते हैं, जो भगवान के फैमिली मेंबर हैं, भगवान के पड़ोसी हैं, उनका क्या, दे आर सो क्लोज। सिंपल जन्म कर्म करने से ही आपको लिबरेशन मिलता है। दे आर ऑल फॉर्चुनेट इनफ टू एसोसिएट विद द लॉर्ड। The husband of the God is a fortune, something more than what is known as liberation. इसलिए हम जो चैंट करते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको करने से जो मुक्ति है वो हाथ हाथ जोड़कर खड़ी रहती है और क्या बोलती है, बताइए मैं क्या सेवा करूं आपकी, बताइए क्या सेवा करूं आपकी। बट जो भक्त है वो मुक्ति नहीं चाहता है, क्या चाहता है? सेवा। प्रभु जी सेवा और उनका संग चाहता है। और वो प्रभु जी गोलोक में उनके चरणों में ही रहना चाहता है बस। गोलोक में तो उनके चरणों में नहीं, गोलोक में तो उनका साथ मिलता है, चरणों में तो वैकुंठ में मिलता है। पीटर वो एक अपना भगवान का दास बन के रहना चाहता है। और प्रभु जी क्या कौन हाथ जोड़ के खड़ी रहती है? मैं अभी मैंने लॉगिन किया है तो सुना नहीं। लक्ष्मीपति रेशन जो है हाथ जोड़ के खड़ी रहती है। हाँ? मुक्ति जो होती है
मुक्ति हाथ जोड़ के खड़ी रहती है। अच्छा अच्छा। खड़ी रहती है। प्रभु जी भक्त बनना चाहता है, दास बनना चाहता है, भगवान का ग्लोरिफिकेशन करना चाहता है, सिर्फ कि भाई मुझे भगवान की डिवोशनल सर्विस करनी है हर वक्त। नहीं, वो जैसे ध्रुव ने भी जैसे कुछ मांगा था, तो वो सब कुछ उसको चाहिए नहीं था, उसको सिर्फ प्रभु के दर्शन चाहिए थे, कि बस उनका वो रूप दिखाई दे, तो वो इतना आकर्षित लगता है कि और कुछ उसके आगे मायने ही नहीं रखता है, तो इसीलिए वो बेटर है देन द मुक्ति। कि ऐसे कोई एक्टिविटी करो तो उसका एक एक बाय प्रोडक्ट्स होते हैं और एक उसका फाइनल प्रोडक्ट होता है। कर्म भी कर्म होते हैं ना प्रभु जी जो। चैंटिंग हरे कृष्णा जब हम करते हैं तो इसका जो बाय प्रोडक्ट है, साइड प्रोडक्ट है, सब कुछ वो उसको मुक्ति बोलते हैं, बाय प्रोडक्ट। तो ये तो मिल ही जाएगा यार। हाँ, ये तो मिल ही तो जाएगा। इसमें तो लिखा है मुक्ति से भी श्रेष्ठ वस्तु, यानी कि वो जो है, जो प्रभु का फाइनल प्यार, प्रोडक्ट है, प्रभु दैट का इज द लव ऑफ कृष्णा, कृष्ण प्रेम। लव ऑफ कृष्णा, प्रभु प्रभु का जी प्रेम मिलता है। प्रेम चाहता प्रेम, है। हाँ, कृष्ण प्रेम। ये तो बताया था प्रभु जी मैंने कि प्रेम चाहता हाँ, वो प्रेममयी भक्ति है ना, है। लव हाँ। कृष्णा, वो जान प्रेमा भक्ति। जो सोया हुआ है कि प्रेम तो है बट वो सोया हुआ है, और सोया हुआ है वो गलत चीज में, डायरेक्शन में आ गया। प्रेम जो है काम वासना बन गई। प्रभु जी वन थिंग, प्रभु के प्रति प्रेम है कि प्रभु का प्रेम है? एक ही, दोनों एक ही चीज है प्रभा जी, एक ही चीज है दोनों। मतलब हमारे मन में प्रभु के प्रति जो प्रेम भक्ति है वो जागृत होती है, हाँ, लव से, और जिससे उनका प्रेम मिलता है। लव से आगे बढ़ना है, लव हम्म। से आगे चलना है। लव ही है जो हमें लव आगे, से आगे क्या है? लव से आगे क्या है? लव अल्टीमेट है, टॉप मोस्ट है लव, उससे नहीं, आगे, आप बोले ना लव से आगे जाना है, प्रेम तो से आगे बढ़ना ना उसके, प्रभु के लिए, प्रभु उससे प्रेम आगे, के लिए। मुक्ति से आगे बढ़ के प्रेम में जाना है। So the rightly the dynasty and the land are both ever glorious by grace of the Lord. तो डायनेस्टी, वंश और जमीन, सारा कुल, सारा कुछ ग्लोरियस हो जाता है भगवान की कृपा से। सब कुछ ग्लोरियस हो जाता है भगवान की कृपा से। नेक्स्ट वर्स पे जाते हैं, 27th श्लोका है भागवतम का, टेक्स्ट नंबर 27। अहो बत स्वर यशस तिरस्करी, उतस्थली पुण्य यशस्करी भुवः, पश्यन्ति नित्यं यद अनुग्रहेशितं, स्मितावलोकं स्वपतिं स्म यत् प्रजाः। Translation and purport by Srila Prabhupada. Undoubtedly, it is wonderful that Dwarka has defeated the glorious of heavenly planets, has enhanced the celebrity of the earth. The inhabitants of Dwarka are always seeing the soul of all living beings, Krishna, in his loving feature. He glances at them and favors them with sweet smiles. तो किसी तरह का कोई डाउट नहीं है कि जो द्वारका है वो सारे स्वर्ग लोक का जो महानता है उसको परास्त करता जा रहा है, और भगवान ये जो अर्थ की सेलिब्रिटी है, एनहांस द सेलिब्रिटी ऑफ द अर्थ, क्योंकि द्वारका भगवान का धाम है, भगवान वहां पर राज कर रहे हैं, पूरे अर्थ की शोभा बढ़ रही है उससे। तो जो द्वारका वासी हैं वो भी कृष्ण भगवान को देख रहे हैं सब जगह, परमात्मा रूप में, प्रेममय रूप में, उनका दर्शन कर रहे हैं, उनकी दृष्टि ले रहे हैं, और उनको मुस्कुरा के उनको देख रहे हैं। यस, रीड The करिए। heavenly planets are inhabited by demigods like Indra, Chandra, Varun, and Vayu, and the pious souls reach there after performance of many virtuous acts on earth. Modern scientists agree that the timing arrangement in higher planetary system is different from that of the earth. Thus, it is understood from the revealed scriptures that the duration of life there is 10,000 years. By our calculation, 6 months on earth is equal to 1 day on heavenly planets.
Facility of enjoyments are also similarly enhanced, and the beauty of the inhabitants is legendary. Common men on the earth are very much fond of reaching the heavenly planets because they have heard that comforts of life are far greater there than on earth. They are now trying to reach the moon by spacecraft. Considering all this, the heavenly planets are more celebrated than the earth. But the celebrity of earth has defeated that of the heavenly planet because of Dwarka, where Sri Krishna reigns as king. Three places, namely Vrindavan, Mathura, and Dwarka, are more important than the famous planet within the universe. These places are perpetually sanctified because whenever the Lord descends on earth, he displays his transcendental activities, particularly in these three places. They are perpetually the holy lands of the Lord, and the inhabitant still takes advantage of the holy places, even though the Lord is now out of their sight. The Lord is the soul of all living beings, and he desires always to have all the living beings in their swaroop, in their constitutional position, to participate in transcendental life in his association. His attractive features and sweet smiles go deep into the heart of everyone. And once it is so done, the living being is admitted into the kingdom of God, from which no one returns. This is confirmed in the Bhagavad Gita. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो जो स्वर्ग लोक हैं वहां पर सारे देवी देवता हैं। कितने हैं? कितने देवी देवता हैं? करोड़ 35 करोड़ 33 करोड़ 30 करोड़। 33 करोड़ देवी देवता। और उनके राजा कौन है? सारे देवी देवता के राजा कौन है? तो इंद्र इंद्रदेव इंद्रदेव। Indradev. तो यहाँ पर सारे pious souls they reach there after performance of many virtuous acts on earth. सारे पुण्य कर वहां पर मिलते हैं। सारे पुण्य कर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और जो साइंटिस्ट हैं the timing arrangement higher planetary system is different from that of earth. यहाँ के 6 महीने और वहां का एक दिन एक समान। हमारे 6 महीने हो जाते हैं, उनका एक ही दिन होता है। ये टाइमिंग का डिफरेंस है। इसलिए स्क्रिप्चर में बताया कि जो ड्यूरेशन है लाइफ का, दिस इज 10,000 years बाय आवर कैलकुलेशन। यहाँ वहां के 10,000 साल, यहाँ के 10,000 साल वहां की लाइफ हायर अपर प्लैनेटरी सिस्टम। 6 months on the earth is equal to 1 day on the heavenly planets. Facilities of enjoyment are also similarly enhanced. The beauty of the inhabitants is legend. वहां पर क्या है? सेंस ग्रेटिफिकेशन बहुत हायर डिग्री में। यहाँ पर समझो अमेरिका चले जाएंगे, अंबानी बन जाएंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां आ जाएंगी, अच्छी ब्यूटी हो जाएगी, ऐसा सोचते हैं। बट वहां पर हेवनली प्लैनेट में इसका 1000 डिग्री ज्यादा एंजॉयमेंट मिलता है, 1000 टाइम ज्यादा। तो वहां पर क्या है? बिविल्डरमेंट रहती है, वहां सारे लोग बिविल्डर्ड रहते हैं। इसलिए डेमी गॉड्स भी अर्थली प्लैनेट आना चाहते हैं, यहाँ पर आएंगे, अर्थ में आएंगे, यहाँ पर थोड़ी भक्ति कर पाएंगे। वहां पर तो सारा सिर्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन हो रही है, इंद्र तृप्ति हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए जो कॉमन मैन है यहाँ पर, वो सारे लोग दे आर फॉन्ड ऑफ रीचिंग द हेवनली प्लेनेट्स। मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, स्वर्ग की, क्योंकि वहां पर पूरा भोग ऐश्वर्य मिलेगा, सारे कंफर्ट्स मिलेंगे। यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पर तो स्ट्रगल हो रही है। वहां जाके थोड़ा भोग करेंगे, और इसलिए वो चंद्रमा पे जाना का ट्राई कर रहे हैं, चांद पे जाने का वो ट्राई कर रहे हैं। तो सारा कुछ देखते देखते द हेवनली प्लैनेट्स आर मोर सेलिब्रेटेड देन, पर तो अर्थ की जो सेलिब्रिटी है, they have defeated the heavenly planets because of द्वारका। तो द्वारका में कृष्ण भगवान एक राजा की तरह रह रहे हैं। और ये 3 जगह जो है, वृंदावन, मथुरा और द्वारका, they are more important than the famous planets within the universe। तो हेवनली प्लैनेट से भी ज्यादा ये
ये प्लैनेट्स जो है, ये प्लेसेस जो है, ये ज्यादा प्रोमिनेंट है। वृंदावन, मथुरा एंड द्वारका। तो वृंदावन में भगवान का बाल लीला है, मथुरा में क्या है? प्रभु जी कंस को मार के वो बैठते हैं अपने माँ ये बाप को प्रभु जी जन्म जन्म स्थान, जन्म उनका जन्म जन्म लीला जन्म स्थान है। और कंस का वध लीला इज इन मथुरा। और द्वारका में द्वारका में राजा बन के जाते हैं। बाकी समय वो में बिताते हैं। कदीश बन गए, 16,108 रानियों से शादी की है। अपने विवाह सारे These places are perpetually sanctified. Whenever the Lord descend on earth, he displays his transcendental activities, particularly in these three places. जब भगवान का दोबारा प्राकट्य होता है तो इन 3 जगहों में स्पेशल भगवान लीलास करते हैं। इसलिए बोलते हैं कि एक घर ले लो वृंदावन में, वहां पर भगवान आएंगे और लीलास करेंगे वृंदावन में आकर। They are perpetually the holy lands, the inhabitants of the take advantage of these places. भगवान कभी भी इन जगहों पे आंखों से ओझल नहीं होते हैं। भगवान प्रभु सारे लोग ऐसे हैं हमारे जानने वाले और दूर दूर के कि वो पर्टिकुलर स्पेशली जाकर के ओल्ड एज में जाके वहां रहते हैं ताकि भी कहते हैं हमारी मुक्ति यही हो यस, इस वृंदावन पे। वो भी वृंदावन में आके अपना शरीर छोड़ेगा, वो भगवत धाम को प्राप्त करेगा, क्योंकि भगवान बुलाते ही उसी को है। ऐसे तो कोई जा भी नहीं सकता। जो राधा रानी और कृष्ण का परमिशन लेके एंट्री मिलती है तो जाएगा, वही ब्लेस्ड होगा, और वहां पर जो शरीर छोड़ेगा तो सुप्रीम ब्लेस्ड हो जाएगा। इसलिए हमने घर बनाए हैं। वहां घर ले लो, वहीं रहो, वहीं पर अपना शरीर को त्यागो। तो he desire always to have the living beings in their swarupa, in their constitutional position, to participate in transcendental life, in attractive features, sweet smile, go deep to the heart of everyone। और ऐसे करके जो लिविंग एंटिटीज हैं, जो जीव है, वो भगवान के धाम को प्राप्त कर रहे हैं। तो भगवान के धाम को प्राप्त करता है, वो वापिस नहीं आता। कौन सा श्लोक है ये? प्रभु जी 18 चैप्टर का 57। पढ़िए। भक्त्या माम अभिजानाति नो नो नो, यास्मि तत्वतः ये प्रभु जी ततो ये वाला तो माम नहीं, तत्व। सर्वस्व चाहम। नो, नहीं नहीं प्रभु जी यही वाला है कि जो मुझे केवल भक्ति से ही जाना जा सकता है, और जो मेरी भक्ति में पूरी 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 तरह से भक्ति में मेरी लीन हो जाते हैं, वो ही केवल वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकते हैं, नो, और फिर वो वापस नहीं लौटते। रॉन्ग श्लोक का रॉन्ग बता दिया आपने। राइट कौन बताएगा? प्रभु जी 2 श्लोक हैं इसमें, भक्ति से ही मुझे केवल जान सकते हैं, और वही मेरे वैकुंठ धाम में प्रभु प्रवेश जी कर ये सकते है हैं। क्या मन मना भाव? नहीं नहीं मुझे 68 पढ़ू प्रभु जी, ये वाला इसमें यही लिखा हुआ है। कौन सा? यह प्रभु जी वो तो ये है कि जो ये रहस्य बताएगा वो जो है वही मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा, और वही वैकुंठ में अंत में मेरे पास आएगा। लेकिन इसमें तो ये है ना कि केवल मुझे भक्ति, जो मेरा भक्त होगा भक्ति से ही मुझे जानेगा, और वही केवल वैकुंठ में का अधिकारी होगा। प्रभु जी वो दोनों के रॉन्ग वर्सेस है। मेरा प्रभु जी बताऊं आपको, वो ये मुझे पता है, जो बता रहे वो भी नहीं है। वो भी नहीं है, पर इसमें यही है प्रभु जी इसका ट्रांसलेशन। तो फॉर वन हु एक्सप्लेन्स दिस सुप्रीम सीक्रेट टू द डिवोटीज, प्योर डिवोशनल सर्विस इज पहले गारंटीड। यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको पढ़ो, पहले क्या लिखा है देखो। कहाँ पर? जो आपके स्क्रीन पे जो शो हो रहा है वो देखो, स्क्रीन पे क्या शो हो रहा है। स्क्रीन पे तो बस वही आएगा, ऐसे भी है। मुझे तो पता है कौन सा श्लोक है ये। थोड़ा हिंट देते हैं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी है इसमें, इस श्लोक में हाँ इलेक्ट्रिसिटी। प्रभु जी वही जैसे वो इतना बड़ा हिंट दे दिया हाँ मैंने। इलेक्ट्रिसिटी 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 आता है इसके अंदर।
Sorry, 15.6. यस, बोलिए अंजलि जी। आपने सीधा गूगल में डाला और वो निकल। 100%. इतनी देर बोलो थोड़ी बोलो बोलो लगती है थोड़ी. बोलो अंजलि जी बोले। मैं तो 15 का 15 बोल रही थी, पर वो आपने कहा नहीं इसलिए हो नहीं बोलिए, सकता। क्या कर रहे हो, वेट क्यों कर, हाँ जल्दी जी. बोलो। ना तद हाँ, भासयाते सूर्य ना सनसनकाना नहीं ससनका ना पवका यत् गत्वा ना निवर्तन्ते तत् धाम परमं मम. ट्रांसलेशन पढ़िए। That supreme abode of mine is not illumined by the sun or moon, nor by fire or electricity. Those who reach it never return to this material world. भगवान का धाम है, वहां पर कोई सूर्य, कोई चंद्रमा, कोई ये बल्ब, हेलोजन लाइट नहीं चाहिए वहां पर। भगवान तो का जो प्रभु जी इस कॉन्टेक्स्ट में तो कुछ है ही नहीं इसमें तो। अच्छा, अब वो तो पहले है ही लाइन नहीं। है प्रभु जी ने ऊपर ये में है ना कि his attractive features and sweet smile go to the deep, इससे from पता which no चलता one है। return, कोई वहां पर चले जाता है तो वापिस नहीं आता है यहाँ पर। कोई अपने घर चले जाएगा फार्म हाउस में, और उसके बाद देखेगा कि तिहाड़ जेल भी थी, तिहाड़ जेल में भी रहता था, वहां पत्थर तोड़ता था, हाँ, ये आपने बताया था. मैं तो रोटियां खाता था, इलेक्ट्रिसिटी लिखते ही गूगल पे आ गया. कौन धुएं, सा श्लोक है, कौन सा श्लोक है? 15.6, 15. धुएं में 15 का सोता। 6। ऐसा अरे सोचेगा तो वापिस आएगा क्या? कभी भी वापिस नहीं आएगा। मेरे धाम में जो आ गया वो वापिस नहीं आएगा। यस, नेक्स्ट श्लोक, लास्ट लास्ट पैराग्राफ पढ़िए। हाँ जी. The heavenly planets may be very famous for offering better facilities of material enjoyment, but as we learn from the Bhagavad Gita 9.20 to 21, one has to come back again to the earth planet as soon as the acquired virtue is finished. Dwarka is certainly more important than the heavenly planet because whoever has been favored with the smiling glance of the Lord shall never come back again to this rotten earth, which is certified by the Lord Himself as a place of misery. Not only this earth, but also all the planets of the universe are places of misery, because in none of the planets within the universe is there eternal life, eternal bliss, and eternal knowledge. Any person engaged in the devotional service of the Lord is recommended to live in one of the above mentioned three places, namely Dwarka, Mathura, or Vrindavan, because devotional service in these three places is magnified. Those who go there to follow the principle in terms of instruction imparted in the revealed scripture surely achieve the same result as obtained during the presence of Lord Sri Krishna. His abode and he himself are identical, and a pure devotee under the guidance of another experienced devotee can obtain all the results, even at present. Hare Krishna. So the heavenly planets may be very famous for offering better facilities. वहां पर ज्यादा भोग ऐश्वर्य है, क्योंकि भगवत गीता में 9.20-21 में बताते हैं दोबारा इस जगत में आना पड़ता है। जैसे हमारे पास अभी 10 करोड़ रुपए हैं बैंक बैलेंस। कोई बच्चे का बर्थडे पार्टी आया, 10 लाख रुपए खर्च हो गए। शादी आई, 1-2 करोड़ रुपए खर्च हो गया। मकान बनाया, 5 करोड़ रुपए खर्च हो गए। तो ऐसे करते करते वो बैलेंस जो है सारा 10 करोड़ रुपया खत्म हो गया, दोबारा जीरो पे आ गया। उसी तरह तुम्हारा जो पुण्य का बैलेंस है, पुण्य के बैलेंस से आप हेवनली प्लेनेट चले जाते हो। वहां पर जाके जब भोग करना शुरू करते हो तो पुण्य का बैंक बैलेंस कम होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, जीरो हो जाता है, तो अर्थली प्लेनेट पे दोबारा आ जाता है। One has to come back again to the earth planet as soon as the acquired virtue is finished. वो परमानेंट लाइफ नहीं है कि परमानेंट हम भोग ऐश्वर्य करते रहेंगे। जब भी बैंक बैलेंस खत्म हुआ तो सारी पेमेंट्स कहाँ से जाएंगी? बिजली का बिल देना है, पानी का बिल देना है, मेंटेनेंस करना है, इतना खर्चा है, कहाँ से पैसे आएंगे? वो खत्म, जीरो। सो
Dwarka is certainly more important than the heavenly planets. For who has been favored with a smiling glance of the Lord shall never come back again to this rotten earth, which is certified by the Lord Himself as place of misery. क्या नाम बोलते हैं अर्थ का, क्या बोलते हैं इसको? दुखालयम प्रभु जी। आल्यम अशाश्वतम, मिजरेबल टेम्परेरी वर्ल्ड है ये. Not only this earth but also the planets of the universes. सारे जो दूसरे प्लैनेट्स हैं वो भी कुंठा है, वो भी सारे कुंठ हैं, कोई भी वैकुंठ नहीं है यहाँ पर. एवरीथिंग इज अ कुंठा हियर. हमारी आवाज आ रही है? हमारी आवाज आ रही है? हाँ जी, आगे प्रभु जी। डिस्प्ले हो रहा है क्या? हो रहा है। ओके. तो इसमें बताया जा रहा है कि ये सारा जो है कोटा खत्म हो जाएगा हमारा. तो it is a kunta. This place is a kunta, miserable place. Not only this earth but also the planets. जो planets हैं वो भी कुंठा है. Because in none of the planets within the universe is there eternal life, eternal bliss, eternal knowledge. ना तो सत्य है यहाँ पर, ना चित्त है और ना आनंद है. तीनों चीजें मिसिंग है. असत, अचित, निरानंदा. टेम्परेरी, इग्नोरेंट, मिजरेबल लाइफ है यहाँ पर. इसलिए जो भक्ति में लगा हुआ है उसको बताया है आप या तो द्वारका में रहो या मथुरा में रहो या वृंदावन में रहो. तो बेस्ट है वृंदावन. कई फैमिलीज जाती हैं, वहीं रहती हैं और डिवोशनल सर्विस करते हैं. बिकॉज डिवोशनल सर्विस इन दीज थ्री प्लेसेस इज मैग्निफाइड. यहाँ पर क्या है, 1000 गुना बेनिफिट मिलता है. दिल्ली में, गुड़गांव में, कलकत्ता में, बॉम्बे में, सूरत में अगर एक माला करोगे एक ही माला रहेगी. वही माला अगर वृंदावन में करोगे तो 1000 माला हो जाएगी. भक्ति जो है 1000 से मल्टीप्लाई हो जाती है, वहां जाके 1000 से मल्टीप्लाई हो जाता है. Those who go there to follow the principles in terms of instructions surely achieve the same result as obtained during the presence of. तो भगवान कृष्ण सामने थे, जो बेनिफिट मिलता था वो सेम बेनिफिट आज भी अगर आप वृंदावन जाओगे सेम बेनिफिट आपको मिलेगा. तो भगवान का धाम, भगवान खुद दोनों अभिन्न हैं. इसलिए शुद्ध भक्त की गाइडेंस में ये सारे रिजल्ट्स आपको लेने हैं. और प्रभुपाद जी के सानिध्य में अभी वर्तमान में भी आप ये सारा लाभ उठा सकते हो, ये सारा मैसेज ले सकते हो, सब कुछ प्राप्त कर सकते हो. तो ये आज का मैसेज है. हरे कृष्णा.